تمام انبیاء نفسی نفسی کرتے ہوں گے، لیکن وہ ہمارے لیے امتی امتی کرتے ہوں گے۔ کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی۔ سب سے بڑا معجزہ وہ ہے قرآن کریم۔ Let's bridge the gap. A social outreach initiative by Dr. Ishrat Shakil. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم آل۔ آج ہم بات کریں گے اپنے محبوب، اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ چونکہ آج جو ایام چل رہے ہیں یہ تو احترام والا مہینہ ہے، جس کو تو عربی کیلنڈر میں ہم ربیع الاول سے جانتے ہیں۔ ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور مستند روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان کا ظاہری وصال بھی اسی مہینے میں ہوا، اور متفق علیہ روایت ہے کہ 12 ربیع الاول کو ان کا وصال ہوا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے ہم آج جس حالت اور جس پوزیشن اور جس سٹیٹس میں ہیں، یہ بالکل ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور ان کا کرم ہے ہم پر۔ وہ تمام تر جتنے بھی ایولز تھے سوسائٹی میں، اونچ نیچ تھا، اور بڑی بری بری عادتوں سے بھرا ہوا تھا یہ معاشرہ۔ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم آدم کی اولاد ہے، ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور کن مصیبتوں اور کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا اپنی حیاتی میں، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے سب سے بڑی عنایت جو ہم پر کی ہے کہ ہمیں امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ کتنے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر تھے جو چاہت کرتے تھے کہ کاش ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک اپنے حواریوں کو کہا دیا کہ میرے بعد میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اپنے ان حواریوں نے ان سے پوچھا، حضرت کیا وہ آپ سے اعلیٰ ہوں گے؟ تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کاش مجھے ان کے نالین کا پھیتا باندھنے کا موقع ملتا تو وہ میرے لیے سعادت مندی ہوتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے، اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم تک یہ دعوت دینے میں، دعوت پہنچانے میں۔ کبھی دنوں انہوں نے، کبھی ہفتوں میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ They would go from down to desk, just from door to door, requesting people to come to the mainstream, come to the normal life. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت تھی وہ ہم تک پہنچا دی۔ اور خدا تعالیٰ بھی جب فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اگر آپ ان نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھو گے تو آپ شمار نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ بالکل ناشکر گزار ہو۔ اور سب سے بڑی نعمت جو میں نے، سب سے بڑی عنایت جو میں نے آپ پر کی، اور جو اللہ تعالیٰ تبارک نے ہمیں فری ایئر دے دیا، He provided conducive atmosphere for we all to for our sustenance on the earth. کیونکہ جب جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا تو آدم علیہ السلام برسوں روتے رہے کہ ان کی توبہ قبول ہوتی۔ چند آیات ان کو نظر کر دیے گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی وجہ سے ان کا توبہ قبول ہو گیا، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ و تبارک نے ان سے فرما دیا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آپ یہاں سے سبھی چلے جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ زمین تو ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم جنت میں 350 سال رہے ہیں، وہ اجنبی ہے، وہاں ہمیں ڈر لگے گا
तो अल्लाह ताला व तबारक ने वहाँ उस वक्त वादा किया था, वकुल नहबितु मिनहा जमिया फइम्मा यातिनकुम मिन्ना हुदन फमन तबअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप यहाँ से चले जाओ, ज़मीन पर उतर जाओ, कुछ देर के लिए वहाँ ठहरना है, फिर आपको वापस बुलाऊंगा, लेकिन इस दौरान आपको मैं रसूल, नबी, हादी बेन भेज दूंगा और उनकी आप पैरवी करेंगे। यू हैव जस्ट टू फॉलो देम फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आपको कोई खौफ नहीं है। हाँ, अगर आपने इनकार कर दिया, यू डिड नॉट ओबे देम, तो आपके लिए वो संगीन और सख्त अजाब होगा। तो अल्लाह ताला तबारक कुरान पाक में तमाम नियामतों का शुमार करते हैं। वन्नफ्सि वमा सवाहा, मुझे आपके नफ्स जिस्म की कसम है जिसमें मैंने एक डिफेक्ट भी नहीं रखा, और आपके लिए तकदीर बना दी, आपके लिए रास्ता निकाल दिया, आपके लिए रास्ते दिखा दिए। वइन्न सयकुम लशता फअम्मा मन अता वतका वसद्दका बिल हुस्ना, सही रास्ता भी बता दिया और खराब रास्ते की डिफिनेशन भी बता दी। फिर मैंने आपको फहम दे दिया, फिर मैंने आपको बोलचाल दे दी, फिर मैंने आपको सोचने समझने की वो सलाहियत दे दी, और मैंने आपको नबी भेजे ताकि आपकी हिदायत कर सके। खुदा ताला फरमाती कुरान पाक में कि मेरी मिन्नत है तमाम मोमिनों पर, मेरी मिन्नत है तमाम मोमिनों पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा रसूलुम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। खाली एक मिन्नत है मेरी आपको कि मैंने आप जैसा, आपके ही नफ्स से, आपके ही हूबहू आपकी शक्ल में मैंने आपके लिए नबी भेज दिया, ताकि कल को आप मुझे ये ना कहेंगे कि जो आपने मैं तो आपको फरिश्ता भी भेज सकता था, मैं तो आपकी हिदायत के लिए मलाइका भी भेज सकता था, लेकिन मैंने आपके ही नफ्स जैसा आपको पैगंबर भेज दिया ताकि आप उनकी बात समझ आई, क्योंकि वो हिकमत और विजडम वाली बात जो समझाने के लिए मैंने भेजा है आपको, वो आपको इल्म देते हैं किताब कुरान करीम का, वो आपको समझाते हैं, वो आपको तज़किया नफ्स सिखाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि वो यूं ही बात नहीं करते हैं। अल्लमहु शदीदुल कुवा, क्योंकि उनकी इल्म और उनके समझाने के लिए मैंने बहुत ताकतवर फरिश्ता रखा है जो उनको समझाते हैं, तब वो आपसे बात करते हैं। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। ये अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोलते हैं, जो मैं इनसे कहता हूँ बोलने के लिए वही बोलते हैं, और तब आप इनके खिलाफ लड़ाइयाँ करते हो, झगड़े करते हो। जब तक आपको दिल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान नहीं है तो आपका ईमान कमज़ोर है, क्योंकि ये हमारे नबी है जिन्होंने हमें तौहीद सिखाया, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह एक है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए। उससे पहले तो हम नहीं समझते थे, उससे पहले तो हमारे पास इंसानी वैल्यूज भी नहीं थे कि हम इंसान हैं भी कि नहीं हैं, और उन्होंने मसावत सिखाई हमें। उनके हम पर कितने करम हैं, उनको बोलना मतलब वो दूर की बात है, उनके बारे में हम तलक कलामी भी नहीं कर सकते हैं, तलक सोच भी नहीं रख सकते हैं। आज रबीउल अव्वल चल रहा है महीना, कितने मस्जिदों में उनका जिक्र हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि डंडोरा पीटें आप, मैं नहीं चाहता हूं कि हम बाजा बजाएं, मैं नहीं ये चाहता हूं कि हम गीत गाएं, लेकिन कम से कम अपने घरों में तो उनका जिक्र करें, अपने घरों में तो सीरत अपने बच्चों को समझाए। और आजकल के बच्चे इतने एफिशिएंट है, इतने कनेक्टेड है विद द वर्ल्ड एंड विद द लिटरेचर कि वो मोबाइल से लेके एक तफसीर आपको सुना सकते हैं अपने बुजुर्गों को। जब हमारे बुजुर्गों ने ये गवारा नहीं किया कि हम घरों में उनका जिक्र करें, सबसे बड़ा मौजज़ा जो आज रहती दुनिया तक हमारी पैगंबर अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तबारक ने अता किया, वो है कुरान करीम। क्योंकि अल्लाह ताला तबारक भी बार बार कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने आपको ये किताब दी कि इसके मिसल आप नहीं पा सकते हो, ना लिख सकते हो, और चैलेंज देते हैं। वह इनकुन तुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरति मिन मिस्लिही
वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर आपको लग रहा है कि ये मुआजिजा नहीं है तो इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ, तमाम मददगार को सामने लाके साथ लाके, इल्लल्लाह, खुदा के बगैर, अल्लाह के बगैर। तो बड़े बड़े वहां उस वक्त लेखक थे, बड़े बड़े राइटर्स थे, बड़े बड़े पोइट थे, बड़े बड़े अदीब थे, कोशिश की, नहीं कर सके, नहीं लिख सके। तो फिर क्या लिखा, क्या बना के लाए, दीवारों पर चिपकाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन शानिअका हुवल अब्तर मा हुआ कौलुल बशर। ये बशर वाली किताब नहीं है। ये सब चीजें अल्लाह ताला व तबारक ने हमें अता की और रहती दुनिया तक ये मुइज़्ज़ा है। जितने भी पैगंबर आगे, नबी आगे, रसूल आगे, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका जो मुइज़्ज़ा था वो उनकी हयाती तक ही रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु, इनके मुइज़्ज़े उनके हयाती तक रहे। हमारे पैगंबर अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मुइज़्ज़ात थे जो उनकी हयाती तक थे, मतलब दरख्त भी आते थे सजदा करने के लिए उनसे, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। वो भी एक मुइज़्ज़ा था। शक्ल कमर, वो भी एक मुइज़्ज़ा था। सूरज और चांद और तारों का वो निज़ाम चेंज करना, वो भी एक मुइज़्ज़ा था, लेकिन वो तब तक ही था जब तक वो हयात थे। लेकिन अल्लाह ताला व तबारक ने वो मुइज़्ज़ा हमको अता किया जो रहती दुनिया तक रहेगा। और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला खुद बयान करते कि मैं खुद करता हूं इसकी हिफाजत। कम से कम हम थोड़ी देर के लिए अपने प्यारे नबी का जिक्र करें, उनके बारे में, उनकी हयाती के बारे में किताबें पढ़ें, उलमा के पास जाएं, आलिमों के पास जाएं, आलिमों को बुला के लाएं। और जितना आप सोच सकते हो, हमारे नौनिहाल बच्चे जो साइंस जानते हैं, जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो नेचुरल साइंस जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, मैथमेटिक्स एंड ऑल अदर साइंसेस पर उनका अबूर है, उनकी दस्तरस है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप आए, कभी कुरान का मुताला भी करें। ये बुक ऑफ विजडम है। ये आम आदमी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। जब तक आप जैसे होनहार बच्चे, जब तक आप जैसे होनहार तालिब इल्म इसका मुताला नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे इसको। इसके समझने के लिए हमें मुफक्किरों की जरूरत है। ये इल्हामी किताब है, और इस इल्हामी किताब वी डोंट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेट from the science to acknowledge that it is a book of God, it is the book from God. No. But our book should certify what is being proved by the science. क्या वजह है हमारे घरों में आज ये भी पता नहीं कि रबीउल अव्वल कौन सा महीना है। हमारे घरों में जब किसी बच्चे का बर्थडे मनाना होता है तो एक नया सा फैशन उमड़ पड़ा है, आ पड़ा है कि अब हम केक काटते हैं उनके लिए। एक दो महीने से पहले हम तैयारियां करते हैं। कभी आपने बच्चों को ये कहा कि जिसकी वजह से हम हैं खुद शनास, खुदाई शनासी तो दूर की बात है, जिससे हम अपने आप को पहचानने लगे हैं, ये उनका करिश्मा है और उनकी नेमतों का और उनकी बरकतों का और उनके वसीले का के बाइस हैं। उम्मीद है कि हम वो सब चीज़ें करें जो अल्लाह ताला व तबारक ने हमें पैगंबर अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बता दी। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पर लिखे कि हम मोहम्मद के उम्मती है। आपकी करतूत से पता चलना चाहिए ये मोहम्मद के उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद की चाहने वाले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका साया और उनका करम हम पर होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा कि हमारे दिलों में अगर उनकी मोहब्बत नहीं है, तो मैं वसूख से कहता हूं कि हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है। कि दिलों में जंग है तो वो हमेशा फितने वाली बात कहते हैं। फितने से दूर रहें, ये शैतान का काम है। और ये जो जंग हमारे दिलों में पड़ी है, इसको साफ करने का आज से फैसला करें। अपने बच्चों को नेक तरबियत दे, उस रास्ते पर चलाए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया और दिखाया था। कुरान की राह पर चले,
ہم ایک ایسا معاشرہ تیار کریں کہ ہماری بستیوں میں کوئی غریب نہ ہو, ہماری بستیوں میں کوئی مفلس نہ ہو, ہماری سڑکوں پر کوئی گندگی نہ ہو. پہلے اپنے آپ کو تو ہم ٹھیک کر لیں. وہ دو جہاں کے بادشاہ تھے, لیکن غربت میں اتنی غریبی میں ہمارے پاس یہ دین پہنچا دیا. کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی, اور بھوک کی وجہ سے وہ راتوں کے اندھیری میں سڑکوں پر گھومتے تھے. ان کی بیٹی شہزادی فاطمہ کئی دنوں سے بھوکی رہتی تھی, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ و تبارک سے اس کا گلہ نہیں کیا, اور اس حالت میں ہم تک یہ دین پہنچا دیا, اور ہم سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اور امید ہے کہ آپ کم سے کم ذکر تو کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جتنے ہم درود بھیجیں گے اتنا کم ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ ہی فرماتے آپ پر جو میں نے عنایت کی ہے, آپ پر کتنے میں نے کرم کیے ہیں, آپ پر میری منت ہے, میں نے آپ کو پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نفس میں سے بھیج دیا. اور کوشش کریں گے کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں, کیونکہ ہم ان کے طلبگار ہیں, ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں. اور اگر وہ ہم سے راضی ہیں, کیونکہ وہ رحلت کرتے کرتے بھی ان کے لبوں سے امتی امتی نکل رہا تھا, امتی امتی کی آواز آ رہی تھی. اور آخرت میں جب حشر کا میدان ہوگا, تمام انبیاء نفسی نفسی کرتے ہوں گے, لیکن وہ ہمارے لیے امتی امتی کرتے ہوں گے. ثابت کریں کہ ہم واقعی ان کے امتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Let's bridge the gap.